حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ السلام علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر خان اور میں ہوں نصرت نور۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور خبر شامل کریں گے کند کوٹ سے۔ تھانہ اس سیکشن کے حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار۔ مقابلہ مہماندانی پولیس پکیٹ کے مقام پر ہوا۔ ایس ایچ او اے سیکشن خلیل احمد لغاری اور اس کی ٹیم گشت پر تھے۔ ڈاکو نے جسے پولیس کے دیکھا پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی ڈاکو کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی ڈاکو شناخت نہ ہو سکی، تفتیش جاری ہے۔ شورکوٹ نواحی قصبہ قائم بھروانہ میں 6 محرم الحرام کا قدیمی روایتی ماتمی جلوس شفقت عباس کے رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کیسر حسین پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی شورکوٹ مہر محمد حیات سرگانہ، ایس ایچ او تھانہ مریام والا انسپکٹر راؤ اورنگزیب نے سیکیورٹی کے انتظامات کو چیک کیا اور فل پروف سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں بہاولپور کی۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اطہر محمود نے ہنگامی ایک پریس کانفرنس اور جامعہ پر پچھلے 3-4 روز سے لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کر لیا۔ 5500 یا ہزاروں نازیبا ویڈیوز کا کہہ کر ہماری بچیوں اور بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے شہر بہاولپور اور آپ کی تعلیمی درسگاہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئس اور نارکوٹکس کا نام لے کر ہزاروں بیٹیوں کے جنسی ویڈیو سکینڈلز کی بات کی گئی۔ کہاں ہیں وہ ہزاروں ویڈیوز؟ پولیس لے کر آئیں یا کوئی ثبوت پیش کریں یا کوئی کمپلیننٹ پیش کریں یا کوئی اور عدالت کے سامنے بھی ثبوت لے کے آئیں، کمیٹیوں کے سامنے لے کر آئیں۔ صرف ایک جھوٹے پروپیگنڈا کی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے، جبکہ میں اپنے آپ کو ہر فورم پر احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اکا دکا واقعات ہر ادارے میں ہو سکتے ہیں، گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ یا کسی پروفیسر کے خلاف کوئی شکایت جینوئن تھی بھی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں خبر شامل کر لیتے ہیں جتوئی سے۔ ہمارے نمائندہ ڈاکٹر محمد کلیم اللہ فاروقی کی رپورٹ کے مطابق جوا کھیلنے سے منع کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ قمار بازی نوجوانوں کو ڈنڈوں، سوٹوں اور مکوں اور جوتوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ تشدد کرنے کی ویڈیو رائل نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ علی پور کے تھانہ صدر کی حدود پاکیہ والی میں اپنی ملکیتی رقبے پر جوا کھیلنے سے منع کرنا عبدالقدیر نامی نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ کمار باز محمد شعیب، محمد علی، محمد یوسف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نوجوان کے ڈنڈوں، سوٹوں، مکوں اور جوتوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ کمار باز نوجوان پر تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بھی بناتے رہے۔ واقعوں کی ویڈیو آج رائل نیوز کو موصول ہو گئی، جس میں کمار بازوں کو نوجوان پر تشدد کرتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ چکوال تحصیل رپورٹر ابراز سین بٹی سے ڈڈیال محرم الحرام 6 کا روایتی ماتمی جلوس ڈوک بردہ سے صبح 9 بجے ملازم لیاقت کے گھر سے شروع ہو کر مختلف گھروں سے ہوتا ہوا نظر نیاز لنگر و سبیل حسین علیہ السلام جگہ جگہ لگائی گئی۔ ماتمی جلوس اس گرمی کے موسم میں امام علی مقام کو ہدیہ تبرک پیش کرتے ہوئے شام امام بارگاہ جعفریہ ٹھڈیال میں پہنچا، جہاں مجلس عزا کا پروگرام شروع تھا۔ چکوال میں ہنگامی پلان ترتیب دے دیا ہے اور 6 محرم الحرام اور 7 محرم الحرام کو تحصیل چکوال، تیلا کنگ اور 8 چوا آستین اور 13 شام میں ریڈ کوڈ ایکٹیویٹ کرتے ہوئے ریسکیورز کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور 100 حاصلی کو یقینی بنانے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ بھکر میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان ڈی سی آفس میں قائم کردہ کنٹرول روم میں 6 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی
CCTV कैमरों से निगरानी के अमल का जायजा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कंट्रोल रूम में तैनात अमला मुहर्रम उल हराम में अपनी सौंपी गई जिम्मेदारियों को कबाका तौर पर अदा कर रहे हैं। इनका कहना था कि यौम शुरू तक तमाम इंतजामी अफसरान और एहकारान की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम में जुलूस व मजालिस अज़ाकीन हमा बलहमा मॉनिटरिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। इस ज़मीन में किसी किस्म की तगाफुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि जिला भर में तमाम इंतजामी अमूर और सिक्योरिटी के इंतजामात पर कड़ी नजर रखी जाएगी। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट बकर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर इतबार रसूल मलंगी से DPO बकर मोहम्मद नवीद की खसूसी हिदायत पर जुलूस 6 मुहर्रम उल हराम सिटी बकर के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखा जाएगा। जुलूस की CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम, सदर DSP खान सर्कल बदर मुनीर, इंचार्ज सिक्योरिटी सनाउल्ला, SI थाना सिटी बकर भी नफरी के हमरा मौजूद। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारान के मेंटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग करके वॉक थ्रू गेट से गुजर कर शामिल होने दिया जाए। जुलूस के इर्द गिर्द तमाम रास्तों को खारदार तारें, कनासे और कनेक्टर लगाकर बंद कर दिया जाए। जुलूस के शुरका और अवामुन्नास भी अपने इर्द गिर्द नजर रखें। किसी भी मशकूक शख्स की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस इमरजेंसी नंबर 15 पर दें। खबर शामिल कर लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर आबिद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा और मुजाफात में मौसलाधार बारिश की वजह से नवाहिया गांव जहांगीराबाद में गरीब मेहनत कश की छत गिर गई। रेस्क्यू 1112 की टीम्स मौका पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां शुरू करके छत के मलबे के नीचे वालदा और 5 बच्चियों को जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया। छत के मलबे के नीचे दबकर वालदा समेत 3 बच्चे जख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। खबर शामिल करते हैं चिनौट से। हमारे ब्यूरो चीफ रजा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक 6 मुहर्रम उल हराम को जिला भर में मजालिस जुलूसों पर सख्ती सिक्योरिटी इंतजाम 700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फरजाए सर अंजाम दे रहे हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ने DC मोहम्मद आसिफ रजा की हमरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का विजिट किया। अफसरान ने कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों की तनसीब मॉनिटरिंग का जायजा लिया। अफसरान ने जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया। अफसरान ने कंट्रोल रूम स्टाफ को अलर्ट होकर मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत की। तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स जुलूसों के रास्तों पर अपने मुतल्लिका इंतजामात यकीनी बना रहे हैं। DC तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए मजालिस जुलूसों पर तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि राजनपुर में महकमा सेहत राजनपुर की जानिब से ट्राइबल एरिया कचलास और माड़ी में लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की हिदायत पर ट्राइबल एरिया कचलास और माड़ी में मुफ्त तिब्बी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और अदवियात फराहम की। मकामी अफराद का कहना था कि महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप का क़याम खुशाइंद है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी राजनपुर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ने बताया कि बुनियादी मरकज से माड़ी और कचलास मेडिकल कैंप लगाया गया और मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। इन्होंने बताया कि कचलास और माड़ी में लगाए गए मेडिकल कैंप में कसीर तादाद में मरीजों का चेकअप किया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नशेरो फिरोज अमानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिबारचा सीम नाला को बड़ा शिकाफ मुदद्दा गांव में पानी दाखिल होने का खतरा, जिन गांव राहों के अरबाब सुलंगी और सालिया सहतु शामिल अस्कार खाते की जानिब से शिकाफ को बंद करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मुख्तलिफ गाँव के लोग अपनी मददात के तहत शिकाफ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर मुंतखब अवामी नुमाइंदे कहाँ गायब हैं, ना इलाके का MPA और ना ही MNA है लोगों की मदद को पहुँच सका, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। शहर कायद में कहाँ कितनी बारिश हुई? महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी है। कराची से ब्यूरो चीफ कुरम सठियार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 99.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन 57.6 मिलीमीटर, मेमार, चवन और यूनिवर्सिटी रोड पर 51.7 मिलीमीटर बारिश हुई। नाच कराची में 58.8 और रंगी में 42.6 और गुलशन हदीद में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिनाह टर्मिनल 30.8 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 22.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद इलावा नाजमाबाद 12.3, कुरंगी 7.3 और
DHQ A2 फेज में 6.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि AF मसरूद में 7.5 के बाद 6 और सदर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून का दूसरा स्पेल शाहिर कायद का खुशगवार मौसम हो गया। आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज गरज चरम के साथ बारिश हुई। ठट्ठा में मानसून की बरसात ने तबाही मचा दी। शाही बाजार, म्यूनसिपल कमेटी और ईदी सेंटर में भी पानी दाखिल। गुज़श्ता 3 दिन से जारी मानसून की बरसात ने जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की पोल खोल दी। हिफाजती इंतजामात के दावे सिर्फ दावे रह गए। बरसात के बायस ठट्ठा का शाही बाजार मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया। दुकानों में 3-3 फीट पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा ने पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत दुकानों से पानी निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के अंदर भी पानी खड़ा है, जो 2 करोड़ रुपए माहाना बजट वाली म्यूनसिपलिटी की कमेटी और सवालिया निशान है। इसके अलावा कच्ची आबादियों के साथ ईदी सेंटर में भी पानी खड़ा है। फैज़गंज पक्का जाम के मुख्तलिफ इलाकों में आज चौथे रोज भी बारिश जारी। फैज़गंज में शदीद बारिश से जल थलेत हो गया। किसानों के हाथ सर पर आ गई। फैज़गंज खजूर और कपास का फसल तबाह हो गई है। इबादतकारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फैज़गंज टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की करप्शन को बारिश ने बेनकाब कर दिया। नालों का गंदा पानी भी सड़कों पर आ गया। रॉयल न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज। बादशाह असद हुसैन, 3 असद हुसैन, दीपनाह असद हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन।